reminder. I needed to record this. Okay. So this is a very very common question, and especially जब मैं young clients के साथ काम करता हूँ, तो they like कि हमारे अकेले के लिए थोड़ी खाना बनेगा, and everyone is involved in it. We will touch upon that for sure. Yeah. Another question is there. Sure. जैसे मैंने बोला शादी का है, फेस्टिव सीजन होता है, तो वो पूरे साल भर ही फेस्टिव चलता रहता है, तो उसके चक्कर में तो पूरा जो हम लोग सोचे होते कि नहीं ऐसे से नहीं खाना है, जो कल आपने मेरे को बोला था कि लो जीआई इंडेक्स का फूड प्रेफर करो एंड एवरीथिंग, तो अगर वो करने चले तो वो तो रहता ही नहीं है. I know. Like every festival has every sort of, और अगर शादी का घर हो तो वो तो और भी पॉसिबल नहीं है. तो उस चीज पे भी प्लीज थोड़ा सा बोलिए. Sure, I will. I've already thought about it because this is a very common thing. So India is a country of festivals now. हमने लॉकडाउन में भी नहीं छोड़ा फेस्टिवल्स को तो. Okay, anything else? I'll wait for 3 more minutes and let. Hi Bansri, we will let everyone else join जिनको भी आना, and then we'll start the session. Who has worked with a dietitian before? Like diet लिया हो कि कभी किसी ने? I have. You have? Okay. How did it go? It was alright. It was alright. Like it was alright from the dietitian side or from your side? No, it was alright in general. I think the biggest problem is sort of following up with the diet. I think one of my biggest challenges has been what my relationship is with food, and so every time I'm hungry or if there's a craving, to sort of choose the healthier option can be a challenge. And that's what sort of the diet forces you to do. So yeah, there's struggle on that end, but I'm hoping that change will happen soon. Okay, fair. I hope I can give some sort of solution there, like with the craving side of it and having a good relationship with food, because I really like this concept of having a good relationship with food rather than going on diet. So I thank you for bringing that up so that we can talk about it. Not a lot of people know about that concept. उनके लिए it's a very far distant concept. क्योंकि खाने के साथ क्या रिलेशनशिप, खाना तो हम खाने के लिए जीते हैं. That is the idea that we all go with, right? So we will touch upon that. Okay, I think let's go. So Yash, thank you so much for making this happen, bro. Hi, no issues at all. So Yash and I got in touch with a common client of ours, and I was like, okay, let's do a session with your clients and we talk about ghar ka khana and weight loss. And he was like, yeah, we are on it, and we are potentially working together as well. So again, thank you, Yash. Let's begin the session, and just to give you all a brief about what my background is like, so that आपको ऐसा ना लगे कि कोई ऐਵੇਂ ही आके बैठ के हमारे सामने बात कर रहा है. There should be some sort of credibility के कहाँ से ये सब आ रहा है. So I finished my medicine from India in 2009. Never wanted to be a classic doctor because I always thought of health beyond medicine. मुझे ऐसा था कि मेडिसिन खा के हम हमारी हेल्थ को नहीं फिक्स कर सकते. There has to be another way. So I never practiced. I went to the UK without knowing what I want to do, but over 10 years while I was in the UK, in first 3 years I explored this idea of holistic approach to health where medicine was not involved. तो मैंने न्यूट्रिशन का कोर्स किया, मेंटल हेल्थ में साइकोथेरेपी का कोर्स किया, फिटनेस ट्रेनिंग का कोर्स किया, एंड सिंस 2014 आई बीन वर्किंग इन वेलनेस. मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है ना, तो आई लाइक इफ अ क्लाइंट कम्स टू मी विद अ मेंटल हेल्थ इशू, आई विल स्टिल गिव देम अ न्यूट्रिशन प्लान, मेंटल हेल्थ कोचिंग एंड फिटनेस प्लान. If someone is coming to me for the weight loss, because weight loss is not just the physical thing, उसमें भी बहुत सारा mental health involved है, उसमें भी बहुत सारा physical involved है, not just the nutrition. So I look at health as a 360 degree thing, not just isolated one कि भाई आओगे तो diet करके खाना करके तुम्हें वजन कम करना. There are so many factors attached to it. तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम कभी एक और सेशन में कभी कभार बात कर लेंगे, पर आज का सेशन इज मेनली फोकस्ड ऑन घर का खाना, बिकॉज एज भावना वाज राइटली सेइंग कि घर पे रह के फैमिली के साथ, जॉइंट फैमिली में रह के
it sometimes gets difficult. So do you all live in a joint family? No, so Sai doesn't. Bhavna does. Trisha? No. Okay. So when I say joint family, you all live with a family, like in terms of like you have parents and सब साथ में, तो आपके अकेले के लिए खाना बन सकता है? Is it possible? Separate? No. Okay. No. Okay, fair. No. Cool. तो हम solution पे आए उससे पहले थोड़ा basic structure सीख लेते हैं ना कि why do we have weight issues to begin with, है ना? Sir, I have this question. What does holistic word actually means? Holistic means looking at a thing पूरा, सिर्फ एक भाग नहीं पकड़ना है. हाँ, whole simple way में पूरे का पूरा देखना है, एक हिस्सा नहीं पकड़ना है. Because when we talk about weight loss is a छोटा सा thing ना. मैं तेरे को तू प्रिशा तेरे को weight loss करना है, तू स्केल पे चढ़ी, तेरा आज 67 kg वजन है, मैंने एक महीने में तेरा 60 kg करवा दिया. There is a weight loss, right? It's a weight loss. But अगर तुम होलिस्टिक अप्रोच में देखने जाओगे तो वो 7 kg कहाँ से गया है, दैट मैटर्स अ लॉट. वो 7 kg जाते जाते तुम्हें कैसा फील हुआ है, दैट मैटर्स अ लॉट. तुझे कितने स्ट्रगल हुए, तू कितनी बार रोई है, तुझे कितनी बार आइसक्रीम खाने का मन किया, तू खा नहीं पाई, तुझे लाइक तेरे को स्ट्रेस हुआ, तो यू गॉट इरिटेट, लाइक व्हाट ऑल वेंट थ्रू, दैट कम्स अंडर होलिस्टिक. या सब कुछ ठीक है. तो that would come under holistic approach. But again, as I said, वो हम कभी और बात करेंगे. Let's talk about the basics कि हमें weight issues होते क्यों हैं. तो जो पहला जो है ना, सबसे पहला reason why we have weight issues. अच्छा, कोई मुझे बताएगा पहले? Like, can anyone tell me why do we have weight issues? And I'm assuming everyone wants to lose weight. That's why we are here, because the title is. Yeah, why do we have weight issues? I think lack of knowledge, first of all. Okay. Like how much you should eat and everything. Like I'm from a Bengali family. Here everybody is like eat rice, more healthy, which I don't really think is right. So Okay. I think that is the first problem. Okay. It's And not about cravings. It's like you don't know how much to eat. You just eat it excessively. Okay. Anyone else? Yes, Rupal. We eat water. आपकी आवाज नहीं आ रही. Nope. Anyone else? Until she comes back. Yes, Bhavna. Yeah, I want to. Actually मेरे केस में क्या हुआ था, like मैं हमेशा से इतना वेट पुट ऑन मेरा एक्चुअली हुआ था कि मेरे को जॉन्डिस हुई थी, एंड उसके बाद वो मेडिकेशन में मेरा प्रॉब्लम हो गया था. लाइक डॉक्टर को नहीं पता चला था कि मुझे जॉन्डिस है, एंड आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम जॉन्डिस सडनली माय वेट वाज पुट ऑन, एंड वो इतना बढ़ता गया कि घट ही नहीं पाया. एंड आई एम टॉकिंग दिस अबाउट नियर अबाउट 2007. Oh, okay. Fair. So उसके बाद से लाइक पहले इनिशियली ऐसा कुछ नहीं था, बाद में वो इतना पुट ऑन गया. इनफैक्ट मैंने 2 साल साइकिलिंग भी की है, लाइक 12 किलोमीटर्स, वो सब भी किया, बट उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा. देन आई आल्सो टेस्टेड थायराइड, वो भी नहीं है. बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इशू हो रहा है. लाइक खाने का भी, इफ आई एम सेइंग, लाइक वो भी मैंने कोशिश की थी 6-7 महीने, मैंने उस पे भी किया था वर्क पूरा, लाइक पूरा अलग से खाना बनाना, ये करना, पूरा उस पे कंसंट्रेट किया था. बट आई डोंट नो व्हाई अगेन दैट आल्सो डिडंट वर्क. मतलब इतना कोई चेंज नहीं मिला मेरे को. सो मे बी लाइक लैक ऑफ गाइडेंस आल्सो. Fair. So 2 points on lack of guidance. Anything else? In the first half we will cover the causes, in the second half we will be talking about the solutions. Let's talk about the main reason is going to be the lack of knowledge. Like we don't know what the food is, like the food we are eating, how is it made. So like as many people have myths about we don't take excess protein. As she said, Trisha said, rice is not good or something, but everything is good in a certain amount. Like as a trainer, I feel I don't eat roti because I feel rice gives me much better energy, like a pre-workout meal. Yes, but like my parents are like eat rice,
it is like it's gonna give you everything, you know. Like in Bengali family na, it's like eat rice. You are craving, eat rice. You're bhuka, eat rice. So that's a problem. Like you can't eat it every time, right? Or Right. always. There must be like certain quantity. I think it's very common in Kerala and Bengal. Rice, rice and rice. Yeah, rice is very common. Like सुबह भी भूख लगे तो rice खाओ और रात को भी भूख लगे तो rice ही खाओ. भूख लगा तो Even in Odisha also rice is very common. रोटी यहाँ पे बहुत कम prefer होता है. I think in Maharashtra, Gujarat and Punjab. Right? Yes, Rupal ji, आप कुछ बोल रहे थे. Are we back? आवाज. No, I can't hear you still. No. Yash. Yup. Hello. Yes, I can. गया वापस. Gone. I think आपको वहां से यश को चिल्लाना पड़ेगा, फिर यश हमें बताएगा. हाँ, मैं यश से. आप Can you hear me? Yes, I can. Yeah. The main issue is like I think we all start eating our traditional way. घर में भी सब साथ में हैं तो बोलते हैं बरसों से हम लोग ये खाते हैं. कुछ नहीं होता, ये सब खाना जरूरी है. But we forget कि पहले के सब के वर्क वो लोग इतने काम भी करते थे. We are becoming like helping hands. ये वो मशीन आ गए, ये आ गए, तो वो सब आ गया तो हमारा खाना मुझे लगता है वो एक्सेस हो जाता है. न्यूट्रिशियस रहता है कि चलो ये सीजन में ये खाना है, वो खाना है, सब खा लो. लेकिन हाउ टू बर्न आउट सेम उसका सामने यूज आउट नहीं करते खाने के बाद. Awesome, love it. रूपल जी, I will यश, मैं मम्मी जी को ना कभी Instagram लाइव पे लेके जाऊंगा मेरे साथ, because I get arguments with so many youngsters. They are like, पहले के जमाने में तो हमारे मम्मी पापा दादा दादी इतना खाते थे, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, अभी क्यों नया आप लोग फैंसी लेके आए हो. मैं बोलता हम फैंसी, yeah, but it's amazing answer. Thank you so much. Okay, so सबसे बड़ा प्रॉब्लम या ये दिस इज लैक ऑफ नॉलेज का है ना, हम लेट्स स्टार्ट फिक्सिंग इट. तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आवर बॉडी इज नथिंग बट द मोस्ट adaptive and amazing machine on this planet. और जैसे हर कोई मशीन को चलाने के लिए उसमें फ्यूल एनर्जी के लिए चाहिए रहेगा ना, वैसे हमारी बॉडी को भी फ्यूल चाहिए. एंड that fuel has to be in a specific amount. ठीक है, that's the first thing we have to know कि हमें वो चाहिए. तो आपकी एज, सेक्स, हाइट, वेट और आपके फिजिकल गोल के हिसाब से वो एनर्जी रिक्वायरमेंट हर किसी का अलग अलग होगा. तो यश का अलग होगा, भावना का अलग होगा, साई का अलग होगा, बिंदु का अलग होगा, त्रिशा, सबका अलग अलग होगा. किस को पता है ये चीज अपना, लाइक किसको पता है कि देयर इज अ फिक्स थिंग, एंड किसको अपना रिक्वायरमेंट पता है. डू यू नो? यश, ऑफ कोर्स. Trisha, do you know? I was recently trying some, online calorie counting and everything, how much requirement and everything, like how much protein you need and things. Like I'm 50 kg. I was 50 kg. I think right now I'm 54. So maybe I need 54 grams of protein and things like this. Okay. So you have a rough idea. Have you started following it? As they said, I can't always follow it like in family, So I try to write down like how much I took in the nutrients. I can't count like I need this much. This is my goal. I have to take it. I can't do this one. Okay. So I try to calculate like how much I took in. Okay, सही है. So this is the first point that we all have to be aware of कि हमें specific amount of energy चाहिए. उससे ज्यादा खाया ना तो तुम्हारा body वो कैलोरीज को स्टोर कर देगा. दिस इज अ सिंपल एंड बेसिक थिंग. हम मैं गाड़ी का एग्जांपल हमेशा देता हूँ. इफ यू हैव अ कार
और कार में तुम्हें पेट्रोल डालना है और गाड़ी की टंकी होती है राइट 15 लीटर या जितने का भी, तो तुम वो टंकी से ज्यादा फ्यूल भर करोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा राइट, दैट्स गोना गो ओवरफ्लो। बट योर बॉडी थिंक्स अबाउट यू। हमारी बॉडी का अगर टंकी है उसमें हम फ्यूल डाल रहे हैं खाने के रूप में, तो जब वो ओवरफ्लो होता है तो योर बॉडी थिंक्स के त्रिशा आज ज्यादा खाना इसलिए खा रही है क्योंकि कल परसों शायद वो फास्ट करेगी, तो जब वो फास्ट करेगी तो तब भी उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं ये स्टोर करके रखती हूँ और मैं त्रिशा को बाद में दे दूंगी। पर त्रिशा तो ऐसा करती नहीं है, कल भी चावल, परसों भी चावल, तरसों भी चावल, फिर वो कंटिन्यू रहता है एंड वो स्टोरेज बढ़ता जाता है एंड इवेंचुअली वी बिकम ओवरवेट, है ना। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। नाउ देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स व्हिच मेक दिस हैपन। तो कभी कभार क्या होता है कि तुम्हारी बॉडी में कैलोरीज इतनी नहीं जा रही है, तो कुछ अदर रीजन है जिसकी वजह से जो भी तुम कैलोरीज खा रहे हो ना वो फैट में कन्वर्ट हो रही है। पर बेसिक प्रिंसिपल तो वही है, तुम जो खाना खा रहे हो वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग ओवरवेट है। तो दूसरे रीजंस में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है और यहीं पे तुम्हारा सोल्यूशन आएगा, घर पे खाने में यहीं पे तुम्हारा सोल्यूशन आएगा। सेकंड इज इम्बैलेंस। हम सबने सुना है ना बैलेंस डाइट खाओ, बैलेंस डाइट खाओ, एवरीवन जस्ट कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट इट। व्हाट आर वी बैलेंसिंग हियर? I guess proper amount of protein, carbs, fats, essential supplements for our bone structures, everything. Yes. Supplements in the form of omega-3, everything. Like many people have different deficiencies. Like me as a personally as a vegetarian, we have a deficiency of omega-3 in ourselves. Yes. But many people who eat non-veg, who eat fish, they don't have a deficiency of that because they get through the food. So it's really important to get all the supplements which are required for your overall body recovery and everything. Yeah. So this is what we are balancing. So nutrients जो हमारे वो दो टाइप के होते हैं, macro and micro. If you are consuming macro from different sources, you are getting micros from them. Okay, but so when we are talking about balance, we are talking about the balance of carbs, proteins and fats. है ना? तो that is where the main problem lies. Indian household का सबसे बड़ा problem is imbalance, और कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। कार्ब्स के एग्जाम्पल में सबसे कॉमन है हमारे सबके घरों में चावल और रोटी। यहाँ तो चावल होगा तो ये रोटी होगा। अभी नए नए मार्केट में आए हैं ओट्स, ब्रेड, राइट। फिर ओकेजनल हम जो बनाते हैं डोसा, इडली या तुम्हारा क्या बोलते हैं पोहा, ये सब ओकेजन, पैनकेक, तो ये सारी चीजें तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाएगी, राइट। कोई और है क्या कार्बोहाइड्रेट में? कुछ और? Sweet potatoes, normal ones. Sweet potatoes, normal potatoes are vegetables. So why only two vegetables? All the vegetables are carbohydrates. Yes. But all like, the vegetables. Yeah. ठीक है। उसके बाद तुम्हारे fruits, all of your fruits are carbohydrates, and they are not bad. But वाह देखो सत्यवचन, they are not bad. One more thing, once you have said that dals also have carbs. मैं दाल को हमेशा इसलिए लाता हूँ बीच में because people think dal is a rich source of protein. It is not because हमें कोई भी चीज को एक मैक्रो का रिच सोर्स बताने के लिए उसका क्वांटिटी चेक करना पड़ेगा ना। तो 100 ग्राम दाल में 67 ग्राम तो कार्ब्स है, 9 ग्राम प्रोटीन है। हाउ कैन इट बी अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन? इट्स नॉट, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ कार्ब। बट अगेन वेजिटेरियंस के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव पुट दाल एज के वे, हाँ तुम दाल भी खाओगे तो तुम्हें प्रोटीन मिलेगा, है ना। तो लेट्स सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ कार्ब। नाउ एज एन इंडियन और एशियन हाउसहोल्ड वी नेवर हैव प्रॉब्लम्स विद ईटिंग कार्ब्स, डू वी? हर किसी के घर पे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, इट्स अ स्टेपल थिंग। या तो चावल बनेगा या तो रोटी बनेगा, या तो ब्रेड होगा या तो पोहा होगा या तो इडली, कुछ ना कुछ तो होगा। एंड वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, राइट? वी डोंट। ओके, कभी किसी का खाना इन सारी चीजों के बगैर बना है क्या? इट नेवर हैपेंस। उसके बाद आता है तुम्हारा दूसरा फैट्स, है ना।
सो फैट्स में सबसे कॉमन फैट हम कौन सा यूज करते हैं? ऑयल। ऑयल, हमारा खाना ऑयल में से बनता है। पीपल गेट कंफ्यूज्ड विद इट, लाइक व्हेन आई आस्क ना कि हम खाने में से ऑयल कौन सा यूज करते हैं, दे थिंक अबाउट ऑल, लाइक कुछ भी अजीब सी चीज है। भाई साहब ऑयल, सबसे पहले वी ईट ऑयल। कभी कभार हमारी करीज में करी से ज्यादा ऑयल दिखता है ऊपर, है ना? सो अगेन, नथिंग रॉन्ग विद ऑयल्स। ऑयल्स आर अमेजिंग, योर बॉडी नीड्स इट। उसमें जो फैटी एसिड्स है, योर बॉडी नीड्स इट। सो तुम्हें फैट्स मिलते हैं ऑयल्स में से, सारे टाइप की ऑयल्स, घी, मक्खन, चीज, आलमंड्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स, पंपकिन सीड्स। याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को शीट भेज दूंगा। इंफॉर्मेशन से लोड मत करो अपने ब्रेन को, बट दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू गिव यू फैट्स। अगेन, हमारे सबके खाने में तेल होता है, दैट इज डन, वो भी बॉक्स टिक्ड है। ओकेजनली हम ब्रेकफास्ट में 2-5 बादाम भी खा लेते हैं, मुखवास के तौर पे फ्लैक्सीड भी खा लेते हैं। सो दिस इज ऑल डन। अभी मैं क्वांटिटी पे नहीं जा रहा हूँ कि हम तेल कितना खा रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग देयर। उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है थर्ड, विच इज योर प्रोटीन्स। दैट्स वेयर, you know, India ranks the highest in protein deficiency or protein deficiency. हमारे खाने में प्रोटीन काफी स्ट्रगल करता है। It's fact. प्रोटीन कहाँ से मिलता है हमें? फिश, चिकन, मटन, एग्स, वेजिटेरियन, पनीर, सोया चंक्स, पनीर, tofu, soya chunks, all the soya products, almonds, walnuts. फिर आते हैं legumes, चना, राजमा, काला चना, छोले, राजमा, सोयाबीन्स हो गए। फिर जितने भी legumes आते हैं वो, उसके नीचे आएगा दाल, फिर आएगा किनोआ। तो ये कुछ ये sources हो गए। The problem is we all do eat them, like even the vegetarians eat them, but it's not as frequent. In Bengal, fish is very frequent, like fish every is day. Fish is very every frequent. day. See, there are certain states वहाँ पे it's all good, वहाँ पे it's good. वहाँ पे problem क्या आता है, we don't never count, and उसके comparison में carbs are very ऊपर. Yes. Okay. तो हमारे households में हम सबको weight issues है ना, these are mainly because of the imbalance. Where does the imbalance lies? हमें carbs हमारे गोल के हिसाब से 35 to 55% के आसपास चाहिए। okay? तुम्हारा अगर तुम्हें दिन में 2000 कैलोरीज चाहिए खाने की, मैं तो अभी कैलकुलेट करने की बात भी नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी एक प्लेट है ना, तुम्हारी एक प्लेट, उसमें आधी प्लेट तुम चावल या रोटी रखो या सब्जी रखो उसके अंदर, पर जो बाकी की जो प्लेट है उसमें तुम्हें प्रोटीन्स डालना पड़ेगा, उसमें तुम्हें थोड़ा फैट डालना पड़ेगा। सो अभी हो क्या रहा है, हमारी पूरी प्लेट कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई है और उसके ऊपर हमने तेल डाला हुआ है। अगर हमें कभी टाइम मिला तो वी विल टॉक अबाउट इट, द डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब्स एंड फैट्स ओनली। when you consume carbs and fats in combination, you know what you are adding. तुम्हारी बॉडी के स्टोरेज को फिल कर रहे हो, बिकॉज तुम्हारी बॉडी का स्टोरेज है फैट, और तुम उसमें और फैट डाल रहे हो, और तुम उसमें और कार्ब्स डाल रहे हो जो तुम यूटिलाइज नहीं करोगे तो वो और स्टोरेज बढ़ाएगा। ठीक है, इसको हमें रोकना है तो वी हैव टू ऐड प्रोटीन्स, बिकॉज योर बॉडी इज रिक्वायरिंग फ्यूल इन अ बैलेंस। ठीक है, सो तुम्हारा सबसे पहला टिप फ्रॉम आज का सेशन इज, I will send a sheet of vegetarian and non-vegetarian proteins if you don't have it already. Trisha and Bhavna should. बाकी के पास नहीं होगा. I will send you that. Make sure तुम वो को प्रिंट आउट कराओ और उसको अपने फ्रिज पे लगाओ. And whenever you eat breakfast, lunch, dinner, you have to make sure कि उसमें से एक आइटम है तुम्हारी डिश में. That is the first tip. और वहां पे इतना फड्डा नहीं होगा घर पे. तुम मम्मी को बोल सकते हो कि मम्मी मेरे को इसमें से ये खाने का मन कर रहा है, तुम बाकी का जो बनाना हो बनाओ, मुझे ये खाने का मन कर रहा है. ठीक है, और अगर रीजन पूछे तो तुम उनको बता भी सकते हो. देखो मैं एक और इंडियन पेरेंट्स की साइकोलॉजी बताता हूँ. तुम उनको ट्रेनर या न्यूट्रिशनिस्ट बोलोगे ना तो शायद नहीं मानेंगे. उनको बोलना डॉक्टर ने बोला है. वो बोला
डॉक्टर को बहुत सीरियसली लेते हैं इंडियन पेरेंट्स, काफी सीरियसली, ठीक है। तो यू हैव टू डू दैट, यू टू स्टार्ट डूइंग कि डॉक्टर ने बोला है, डॉक्टर ने ये मुझे शीट भेजा है कि ये खाने का, इसमें से एक चीज होनी जरूरी है। तो दैट वुड बी वन। टू, if you are adding proteins, you cut your carbohydrates. But you know, it's sometimes very tough to calculate the proteins. I mean, I'm having one a chunk of fish. It's not always like you go have the whole fish, right? So, but then you don't know how much it is and how much you're getting from it. So that's when it gets tough. See, how much you are getting it from it, I will tell you. वो शीट पे लिखा होगा कि भाई 100 ग्राम फिश में तुम्हें कितना प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है। हाउ मच यू आर टेकिंग इट, वो तुम्हें तुम्हारे मम्मी से आर्ग्यूमेंट करके डलवाना पड़ेगा कि मेरे को जरूरत है, मेरे को खाना है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, कि कितना चाहिए और कैसे मेजर करेंगे। 300 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, गो ऑन Amazon, बाय अ डिजिटल स्केल। सी, डिजिटल स्केल इज समथिंग जो हर किसी के किचन में होना जरूरी है, हर किसी के किचन में होना जरूरी है। यहाँ पे भी है ना, ये आर्ग्यूमेंट बहुत आता है कि पहले के जमाने के लोग तो ऐसा करते नहीं थे, उनकी पहले के जमाने के लोग स्वाद अनुसार खाते थे। अभी है ना, हमारी किचन पे सॉल्ट वॉल्ट की डब्बियां रहती हैं, खाने में सॉल्ट है, उसके ऊपर भी दबा दबा के हम डालते हैं। तो यू हैव टू स्टार्ट मेजरिंग थिंग्स जस्ट टू गेट थिंग्स इन कंट्रोल। अच्छा रूपल जी, डू यू कुक? आप घर पे बनाते हैं खाना? घर पे अगर कितने लोग हैं आपके घर पे? 7। तो उनके लिए आपको 7 लोगों के लिए आपको छोले बनाने हैं, तो आप कैसे मेजर करोगे उनके लिए? अनम्यूट करना। हाँ जी। एक जन के ऐसे 2 पीस ऐसे डालती हूँ कि मम्मी पापा कम खाएंगे। हाँ। तो उनका एक, बच्चों के 2 हाथ हाँ। गिनती हूँ कि इनके 2। ओके। रेगुलेट अकॉर्डिंग टू कि उनको 2 पीस भर के डालती हूँ। ओके। तो उस हिसाब से मेजर करके डालती हूँ। तो आप जब भी बनाते हो आपको थोड़ा थोड़ा ये मेजर तो करना पड़ता है ना? क्या आप अंदाजन ऐसे ही डब्बा ऐसे ठोल देते हो? आप वो मेजर करके डालते हो ना? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। ओके ना? सो करके डालना पड़ता है। तो अभी आपके मेजरमेंट का वो क्या है, स्टैंडर्ड क्या है? आपको कैसे पता होगा उनको इतने में चल जाएगा? आई एम आस्किंग यू व्हाट जैसे जो खाता है, जी पता है कि यश है। हाँ। तो यश है तो ये बनाऊंगी तो ये ज्यादा खाएगा। ओके ओके। जिसमें वो प्रोटीन है तो अभी उनको पता है कि इसको ये चीज ज्यादा पसंद है। Awesome. तो he will eat this more. Awesome. Okay. So अभी हम ये मेजरमेंट कैसे चल रहा है पता है? अभी मेजरमेंट चल रहा है कि कौन कितना खाएगा। How about एक मिनट, तो कॉल आ गया। हाँ, How about आप लोग फाइंड आउट करो कि कितना जरूरी है एंड उसके हिसाब से मेजर करो, और मुट्ठी से मेजर करने की क्या जरूरत है। हाउ अबाउट एक छोटा सा डिजिटल स्केल लेके आए, फिगर आउट करें कि भाई साई को दिन में कितना प्रोटीन चाहिए और 100 ग्राम चने में से इतना प्रोटीन मिलता है, तो साई को एक मील में इतना चना रहेगा। साई के अलावा घर में 4 लोग और हैं, तो चलो कैलकुलेट करो, इसके हिसाब से 4 होगा, वो मेजर करके हम बनाते हैं। हाउ अबाउट वी स्टार्ट डूइंग दैट। उसमें होगा क्या, जितना जरूरी है उतना जा रहा है। मेजर तो वैसे भी कर रहे हैं, मेजर हम कौन से स्टैंडर्ड से कर रहे हैं, कितना उसको अच्छा लगता है। हाउ अबाउट कितना जरूरी है पे थोड़ा शिफ्ट करें। इट्स वेरी सिंपल एंड द रीजन व्हाई आई आस्क्ड रूपल जी अबाउट हाउ शी मेजर्स इज बिकॉज जब भी मैं मेरे क्लाइंट्स को बोलता हूं ना कि खाना मेजर करके खाना पड़ेगा, तो उनको लिटरली लाइक ऐसा लगता है ये किससे मैं बात कर रही हूँ, पागल हो गया है ये, खाना मेजर कर करके कौन खाता है। बट द ओनली पर्सन जिन्होंने कभी खाना कुक नहीं किया ना, वही ऐसी बातें कर सकता है, बिकॉज कुकिंग वाले को पता है कि खाना मेजर तो करना ही पड़ता है, या तो कटोरी से, या तो गिलास से, या तो कहीं ना कहीं से मेजर तो करना ही है तुम्हें खाना। सो हाउ अबाउट वी स्टार्ट डूइंग इट विद व्हाट यू नीड। ठीक है, तो हमारा पहला सजेशन यहाँ पे हो गया है। Sir, I have this question. Yes, Trisha.
I read it somewhere that only a fistful of rice will be enough for your one-time meal carbohydrates. Is it true? It's not कोई basis नहीं है ना, किसकी fist की बात कर रहे हैं, हम खुद की fist की बात कर रहे हैं. It's not practical. So it's not practical. See, ये जो pseudo rational बातें आती है ना, they are just to keep you in check. कि भाई इतना करो, breakfast बड़ा होना चाहिए, lunch उससे छोटा होना चाहिए, dinner उससे छोटा होना चाहिए, फिर तुम्हें भूख लगी हो ना, उससे एक निवाला कम खाना चाहिए. ये जो सारी बातें, there is no scientific basis to it. It's just to keep you in track, keep you in check. कि तुम एकदम heavy ना खाना खा लो या उसके लिए. There is no basis behind it. The right amount of rice is, you figure out how much carbs you need. You figure out तुम्हें per meal में कितना carbs चाहिए. You figure out चावल कितना खाना पड़ेगा वो carbs लेने के लिए, and that is the right amount of carbs. And that can change for you, Trisha, at different stage of your life, because it depends upon age, sex, height, weight, and your physical goal. है ना? तो कोई अगर आपको specific बोल रहा है कि यही इतना खाना है, doesn't work. It is very personalized thing. Are we clear on proteins and fats? We have to reduce the carbs, increase the proteins. कैसे? List आप लोग को मिल जाएगा. Next. किसी को कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हो. So I have one doubt. Yes. So what happens is usually the true or not, like whenever I'm on low carbs, so it becomes like you get a lot of aggression maybe, or like, you know, I get like irritated on small things. Is it true? Is it like relatable or something, like having carbs and like the relation of your anger is something with that? Anger का carb से direct relation नहीं है, but it shows a sign of low calories that you are consuming. So when you are consuming less calories, it is creating again तुम्हें भूख ज़्यादा लग रही है, and that is connected psychologically with the aggression and frustration, because you are used to eating in a certain way, and then you reduce it. Yeah. You reduce it. A lot of people find it very difficult to accept it, but carbohydrates are stimulants to your brain. Yes. ठीक है, तो वो stimulation अगर तुम reduce करोगे तो your brain is prone to feel frustrated. So that is the connection. Okay. Also, you know, after lunch, maybe after just 1 hour or 2 hours, you're again feeling hungry. What about that? Okay, let's talk about that. उसका solution चाहिए ना, उसका solution कल से तुम्हें मिल सकता है. But इसका हम पहले title के बारे में बात करते हैं. This comes under the title of cravings. अच्छा. ठीक है, तो हमें क्रेविंग दो टाइप की होती है. एक है पूरा दिन मीठा खाने का मन करना, या रैंडम टाइम्स पे मीठा खाने का मन करना, या खाने के बाद मीठा खाने का मन करना. दैट्स वन. टू, अभी खाना खाया है, 1 घंटे के बाद वापस से भूख लगी मुझे. ठीक है, तो इसका आधा सोल्यूशन हमने बात कर ली है. जो अगर तुम्हें त्रिशा खाना खाने के बाद वापस से भूख लग रही है, इट इज अ क्लियर साइन कि तुम्हारे मील के अंदर प्रोटीन इनफ नहीं था. सो लेट्स से यू सेड यू आर 54 kg, राइट? डू यू वर्क आउट? Yes, I do. What do you do in workout? Last 2 months मैंने कुछ नहीं किया, as it was festive season and exams everything. Otherwise, I like to do like simple workouts. और अगर college जाना रहा तो मैं कभी gym जाती हूँ वहाँ पे. Okay. And okay, I think it's mostly cardio and body weight. Cardio and body weight. Okay, fair. Body weight. Yeah, I have a resistance band and that's it. Okay. So let's say you're doing cardio and body weight with resistance bands. It's okay. 3-5 times a week. Yeah. So you would need anywhere between 1.2 to 1.5 grams per kg of your body weight protein. ठीक है? और अभी के टाइम के लिए सिर्फ 1 ग्राम, because you are not working out. Not working. So you need 54 to 60 gram protein. So per meal you need 20 grams protein. तो जो मील के अंदर तुमने 20 ग्राम प्रोटीन खा लिया ना, उसके बाद तुम्हें भूख नहीं लगेगी. मैं आपको बता के दे रहा हूँ अभी से. ठीक है, बट जो मील में कार्ब्स ऊपर हैं और प्रोटीन तुच्छु सा थोड़ा सा था, then you will feel hungry. Okay. So उसका solution is straight up. You consume protein as you need. That's the first half. Yes, do you wanted to ask something?
Yeah. So I want, like, maybe if you can give everyone an idea about the protein thing only. So many people doubt like how much protein intake should be done personally. So as you said, you're on resting time, only 1 gram per your body weight. So can you, if you can please explain others as well, ki, on different modes of activity, how much protein grams should be taken? Sure. So protein requirement should be anywhere between 1 gram to 2 gram max per kg of your body weight. But वो range कैसे differ करेगा depending upon the physical activity. तुम कितना intense. So let's say तुम कुछ physical activity एकदम sedentary life है 1 gram. If you go for occasional walks 4-5 days a week 1.2 gram. Walks के साथ तुम body weight training भी कर रहे हो तो 1.3-1.5 gram. जितना जितना तुम्हारा बढ़ेगा. उसके बाद अगर if you are going for a regular run 5 times a week or going to gym and lifting and everything 1.7 gram. If you go to gym almost every day heavy lifting चल रहा है तुम्हारा, you know, that's where you eat the maximum 2 grams per kg. But that ranges 1 to 2. But you don't need to go above 2. You must not go below 1. Above 2 का जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत महीनों के बाद आता है. So you know there are people who say प्रोटीन बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, हमारी किडनी को प्रॉब्लम हो जाएगा. एंड दैट मीन उसका मैं बताता हूँ वो प्रॉब्लम कब आता है. वो प्रॉब्लम तब आएगा जब तुम्हें चाहिए 150 ग्राम प्रोटीन और तुम 300 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो 4-5 महीने तक रोज. Right. It's a far fetch. Your kidneys, we sometimes underestimate our bodies. Your bodies are not that fragile or that brittle. तो तुम्हारा किडनी अच्छे से वो हैंडल कर लेगा. पर why to take risk? इतना वो स्टेमिना चेक करने की जरूरत नहीं. You just stay in the limit. कभी कभार लोग बॉडी बिल्डिंग या स्टेज पे परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो दे कंप्लीटली रिड्यूस द कार्ब्स एंड दे गो हैवी प्रोटीन, काफी हैवी प्रोटीन. तो वो एक आध हफ्ते 10 दिन के लिए कर सकते हो. इट्स फाइन. बट आई होप दैट्स क्लियर. ओके, सो दैट्स वन साइड ऑफ द क्रेविंग. किसी को शुगर क्रेविंग्स होता है क्या? स्वीट टूथ? यश भाई? Yes. No. Sometimes. Yes, a Very lot. rare. Rare. सी शुगर क्रेविंग्स है ना, वो दो बड़े रीजन की वजह से होता है. वन इज गट फ्लोरा, बात करते हैं इसके बारे में. एंड दूसरा इज स्ट्रेस. इफ यू आर गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस, बिंज ईटिंग होता है ना रात को 1 बजे 2 बजे उठ के, that is because of stress. तो of course stress है तो you to start fixing what is causing you stress. हम करते क्या है, हमें जो चीज स्ट्रेस करती है ना, हम उसको फिक्स करे बगैर हम उससे डिस्ट्रैक्ट होने की ट्राई करते रहते हैं. म्यूजिक सुन लिया, भागने चले गए, सो गए, कुछ देख लिया, which is okay. तुम्हें टेम्पररी, it is going to give you relief, but we get stress about things, right? ऐसे हवा में से स्ट्रेस आता नहीं है. You get stressed about things. Try to get clarity, try to talk to someone. जो प्रॉब्लम तुम्हें बॉदर कर रहा है उसको सॉर्ट आउट करने की ट्राई करो. एंड जब भी वो तुम्हें बॉदर कर रहा है तो जब तक सॉल्यूशन नहीं आ रहा तब तक ये सारे डिस्ट्रैक्शन मेथड यूज कर सकते हो. बट द फर्स्ट जो मैंने गट फ्लोरा के बारे में बात की थी, किसी को पता है गट फ्लोरा के बारे में? Does anyone know? Yeah, the microorganisms in your guts. Yes. हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं. ओके, एंड उससे डरने की जरूरत नहीं है. उसको हम हेल्दी, हाँ, उनको हम हेल्दी गट फ्लोरा बोलते हैं. they are needed for the healthy gut वहाँ पे, ठीक है. बट प्रॉब्लम क्या होता है कि उसके साथ साथ कुछ बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं और उन दोनों का एक प्रपोर्शन होना जरूरी है. So 80-20 का रेशियो बोलते हैं कि you should have 80% good bacteria and 20% bad bacteria. तो इन दोनों का कैरेक्टर है, उन दोनों के बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उनको खाना भी चाहिए होगा, तो उनका खुद का खाना है. तो जो हेल्दी बैक्टीरियाज है उनका खाना है फाइबर. जो हम फाइबर वाला खाना खाते हैं ना, ओट्स हो गया, बहुत सारे वेजिटेबल्स हो गए, पोटैटोज, राइस, ग्रेन्स, इन सारी चीजों में से हमें जो फाइबर मिल रहा है वो. और जो बुरे वाले बैक्टीरियाज है, दे not kidding, they survive on refined sugar. इसलिए बचपन में मेरी मम्मी मुझे बोला करती थी, मुझे पता नहीं आपकी मम्मी ने आपको बोला है कि नहीं,
इतना मीठा खा रहा है, तेरे पेट में कीड़े पड़े हुए हैं, इसलिए तू मीठा खा रहा है. ठीक है? Those कीड़ास are nothing but your bad bacteria, because bad bacteria को मीठा खाना अच्छा लगता है. So जब भी बचपन से तुम अगर बहुत मीठा खा रहे हो तो तुमने किया क्या है, उनको खिला खिला के बड़ा कर दिया. अब जब भी उनको भूख लगेगी तब भी आपको मीठा खाने का मन करेगा, बिकॉज उनको मीठा खाना चाहिए. This is the cycle what's happening. So it's either or. Either you are suffering from stress, when you eat मीठा मीठा खाना is a comfort food, right? तुम्हें जब भी stress होता है, you won't go for a salad. You always go for a brownie, chocolate, ice cream, cake and stuff, right? क्योंकि वो तुम्हें comfort देता है. So मीठा खाना is a comfort food that is helping you with your stress. Second is your gut flora. You have to start fixing it. I'll talk about how to. Yes, you had a question. Yeah, so these days there's a new trend coming, like as you said about the gut flora. So people these days, they have a new product has come in the market regarding the greens. Yes. So they say it's good to improve your gut health and all, because since many of, as you said, like the lack of imbalance in the diet, don't eat good amount of greens which require on daily the good fibers and all. So what is your say on the upcoming such, like, you know, about the like supplements on greens and all? See, green supplements are good, I would say, but supplements के word में ही उसका answer है, right? I don't have any beef with supplements. Supplements are all good. In fact, I used to use it. It is for the people जिनका lifestyle is very busy and they can't eat a lot of greens. So जो green supplements हैं उसमें उन्होंने kale, spinach और जो fibrous veggies होते हैं उनका extract निकाला होता है, उनको dry करके वो powder form में हमें दे रहे होते हैं. Right. So they are good. So they are giving you fiber and antioxidant at the same time. But if you can eat it, you should always prefer the eating wala. But if you have a busy lifestyle, you don't have time, it is good to have a supplement as an emergency. कि भाई रात को तुमने एक मील में मिस कर दिया वेजीज खाना, तो you can add it in a पानी and you can just drink. Simple. Is that? तो gut flora को balance करने के लिए we need to do two things. We have to increase the probiotics and prebiotics. Now you don't have to get confused with the names. Probiotics are healthy bacteria जो हमें खाने होते हैं. Literally तुम्हें bacteria खाने होते हैं. कौन खा लेगा? भावना खा लेगी bacteria? I think you are talking about curd. Smart है यार भावना यार. काफी smart है. Okay. So there are food items which have healthy bacteria, living organism, right? The yogurt is one of the most common ones. And yogurt for vegetarian does एक तीर से दो निशान. Because when you are eating yogurt regularly, you are adding healthy bacteria, and yogurt is a rich source of protein and calcium. ठीक है? और उसमें lactose भी कम होता है. So amazing. सारी चीजें एक साथ दिया हुआ है. तो अगर तुम vegetarian और if you feel you are struggling with protein, have curd on eel. Like मैं तो हर मील में खाता हूँ. Not because I'm vegetarian, because my family is, and अभी मैं घर पे रह रहा हूँ तो मुझे रोज वो चिकन नहीं खाने देते. So I add yogurt in all the meals. Have it, that's one. तो ये आपने क्या किया है? ये आपने healthy bacteria को डाला है उसका बैलेंस बढ़ाने के लिए. अब इनको खाना भी खिलाना पड़ेगा. उनका खाना है प्रीबायोटिक, फाइबर्स. तो फाइबर वाला जो भी खाना है वो तुम्हें खाना है. तीसरा तुम्हें करना है जो बुरे वाले बैक्टीरिया से उनको भी कम करना पड़ेगा ना, बैलेंस वापस लाने के लिए. तो उसका तो सिंपल आंसर है, मीठा खाना बंद कर दो. तो वो उनको उनका खाना नहीं मिलेगा एंड दे विल इवेंचुअली डाई. बट आई नो तुम्हारे दिमाग में जल रहा होगा कि वो तो हमें पता है, पर कैसे? इतना इजी नहीं है ना. मीठा खाना कैसे बंद कर लेंगे आप? उसके पीछे का मैं लॉजिक बता देता हूँ. एज सून एज यू विल स्टार्ट इंक्रीजिंग योर प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स, तुम्हारा क्रेविंग अपने आप कम होता जाएगा. एंड मैं लिख के देता हूँ, लिख के नहीं, ये रिकॉर्डेड वर्जन में दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को. 10 दिन तक जो मैं बोल रहा हूँ ना वो ट्राई करो, शुरू करो. सिर्फ इंक्रीज योर कर्ड एंड इंक्रीज योर फाइबरस फूड. तुम्हारा क्रेविंग और तुम्हारा जो खाने के बाद भूख लगने वाला सीन है वो कम होता जाएगा. बट वन थिंग यू हैव टू डू कि जब भी तुम्हें सामने मीठा कुछ दिखा, तुम्हें मन नहीं कर रहा है पर सामने पड़ा हुआ है इसलिए तुम खा रहे हो, वो वाला सीन नहीं करना है. You have to listen to your body. If you don't feel like, don't eat it. और वो अपने आप होगा. बहुत सारे clients का experience है. Try that out. So that was your craving side. थोड़ा सा recap करें. किसी को कुछ सवाल है पहले बताओ यहाँ तक.
So is there any like difference in curd and yogurt? Yes, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, ज्यादा कुछ नहीं, पर घर पे जो बनता है ना दैट इज योर कर्ड, और मार्केट में जो अलग प्रोसेस से बनता है दैट इज कॉल्ड योगर्ट। पर दोनों में बैक्टीरिया का जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग है, पर टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़े थोड़े केमिकल्स डिफरेंस रहता है, बट इवेंचुअली अगर तुम कंपैरेटिवली देखने जाओगे तो घर पे बना हुआ कर्ड इज रिच इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देन दी बाहर वाला। पर ज्यादा फर्क नहीं है, दिमाग में वो झोल मत मचा लेना कि मेरे को बाहर वाला नहीं खाना है। यस यस। What would be an alternative for curd and yogurt? So many. Any alternative? So like, many. I don't eat curd and yogurt like since I'm on. Like, I can't even stand the smell of it. If anyone is having curd at the dinner table or something, I'll just go sit on the other side of the hall and eat my food. Dude, you're like my nephew. He's the same. उसको मैं लाइक वो मेरे पास में खाएगा भी नहीं, और उसको मैंने टच कर दिया ना, मैंने जो हाथ से खाया तो वो भाग जाएगा, वो बोलेगा तू क्या। बट आई नो व्हाट यू मीन। ओके, सो बाकी की जो चीजें हैं ना, व्हेन इट कम्स टू, यू कैन हैव एप्पल साइडर विनेगर इफ यू वांट टू, that's not that rich. Yeah. But you know can you do छाछ? No. So कर्ड में से बना हुआ है तो वो भी नहीं जाएगा। So there is this. What about Yakults which come? Are those good? Yeah, I was just gonna come there. उसके बाद हमें थोड़ा फैंसी ड्रिंक्स पे जाना पड़ेगा। याकुल्ट है, केफिर है, फिर कंबूचा करके आता है सप्लीमेंट, that is again natural but rich in probiotics. अगर ये सारे झोल में नहीं पड़ना है so just get a supplement. प्रोबायोटिक्स का सप्लीमेंट आता है जिसमें एक तुम्हें सिर्फ गोली खानी रहेगी और सब कुछ आ गया उसके अंदर। Sounds good. ठीक है। So coming back to थोड़ा समराइज करते हैं, हमारे हाउस होल्ड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इम्बैलेंस का, एंड वो इम्बैलेंस को अगर हम थोड़ा सा फिक्स करना शुरू करेंगे तो घर पे हम अपने हिसाब से वेट लॉस कर सकते हैं। हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कट डाउन द कार्ब्स एंड इंक्रीज द प्रोटीन्स, बिकॉज दैट इज कॉजिंग यू द मेन प्रॉब्लम। उसके बाद थोड़ा एडवांस स्टेप ये होगा कि तुम फिगर आउट करोगे तुम्हें कितनी कैलोरीज चाहिए, and then you eat accordingly. So calorie deficit is not something that I can teach you. I can teach you, but I need a longer duration for that. But calorie deficit का मतलब है कि तुम्हें figure out करना है how many calories you need, and then you reduce थोड़ा बहुत उसमें से. But that's an advanced step. Are we cool with that? Now, second, yes, Bhavna. आप कैलोरीज का जो काउंट का बात कर रहे हो, इट्स अकॉर्डिंग बीएमआई वाला से जो कैलोरी हमें पता चलता है कि हमें अगर वेट पुट ऑन है, हमें लूज करना है, तो ये टारगेट्स में से जो इनटेक करना है पर डे कैलोरी, आर यू टॉकिंग अबाउट दैट? Similar, but BMI you can find so many calculators online. तू मुझे WhatsApp उसी से मेरे को पता है। Yeah. So you WhatsApp तो me, I'll send you the link. Don't worry. So it's called TDE, total daily energy expenditure. That's what you need every day. Okay. Yeah. Then you can start tracking how much you are having from different apps like Healthify Me or MyFitnessPal or something like that. You can do that. So yeah, that is it. So you increase protein, reduce carbs, have more fibrous food, have more yogurt. That will start fixing your cravings. And प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें वेट इश्यूज इसलिए हैं बिकॉज हमें जो चीजें नहीं खानी चाहिए वो हम खा रहे हैं। हियर मी आउट, ये थोड़ा ट्रिकी है। इट्स नॉट जस्ट दैट, हमें वेट इश्यूज इसलिए हो रहे हैं बिकॉज हमें जो चीजें खानी चाहिए वो हम नहीं खा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स तली हुई चीजें, कार्ब्स, मिठाई, ये वो तुम्हारा वजन पुट ऑन कर रही है, बट अगर उनको तुम अच्छे वाले खानों के साथ बैलेंस कर दोगे तो उनका जो बैड इफेक्ट है वो शायद नहीं होगा, या इतना ज्यादा नहीं होगा जितना तुम सोच रहे हो। तो अगर तुम्हें फिक्स करना है तो ये जो नहीं खानी चाहिए उनको रिड्यूस करो, जो खानी चाहिए उनको बढ़ाओ, तो यू विल ब्रिंग योर न्यूट्रिशन बैक टू द नॉर्मल। एंड अगर तुम्हारे मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं या घर पे जो नहीं मान रहे हैं उनको ये वीडियो दिखाओ, और एंड उनको बोलो कि मेरे से बात भी कर सकते हैं बिंदास, बिकॉज़ आई जेन्युइनली वांट टू टॉक। इनफैक्ट आई एम प्लानिंग अ प्रोडक्ट जनवरी में, डिनर विद उमेश करके, कि हम साथ में बैठ के जूम पे बातें करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, सारी फैमिली बैठ के।
But any questions? Any questions? Did you all enjoy the session? मजा आया? As always, was very nice. Thank you. कुछ और सवाल हो तो बताइए. And जो साई ने एक सवाल किया था and वो she left, but it's a very important thing. Yeah, Sorry. Yeah, I'll just pass on the message you tell the. Yeah. So वो उसका सीन ये है कि you have to have a healthy relationship with food. अभी क्या हुआ है, हमारा अनहेल्दी रिलेशनशिप है. तो हमें जो चीजें अच्छी लगती है ना खाने में, जो भी लाइक यू थिंक ऑफ योर फेवरेट डिशेस, वड़ा पाव, पानी पूरी, पाव भाजी, गुलाब जामुन, आइसक्रीम, पैनकेक्स, केक्स, पेस्ट्रीज और whatever जो भी है, दे आर नॉट बैड. उनके साथ हमारा अनहेल्दी रिलेशनशिप इज बैड. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि लेट्स से दिस इज द फेज ऑफ 30 days, राइट? ये स्क्रीन यहाँ से, सो यहाँ से हमारा 30 days शुरू हो रहा है और ये हमारा 30 day खत्म हो रहा है, राइट? तो अभी हमारे प्रॉब्लम्स क्यों हो रहा है पता है? कि यहाँ पे अनहेल्दी हेल्दी, एक दिन हेल्दी, अनहेल्दी एक दिन हेल्दी, अनहेल्दी हेल्दी, अनहेल्दी हेल्दी. हेल्दी में क्या, ग्रीन टी हो रहा है, नींबू पानी हो रहा है. ये पैटर्न क्या होना चाहिए? हेल्दी, सैटरडे संडे पिज्जा, हेल्दी चाइनीज, हेल्दी वड़ा पाव. दिस इज द पैटर्न वी हैव टू कम टू. और जब ये पैटर्न होगा तो तुम अच्छा खाना भी खा सकोगे. देन तुम्हारा पैटर्न, जो अभी पैटर्न चल रहा है उसको रिवर्स करना है. दैट्स व्हाट आई टॉक अबाउट हेल्दी रिलेशनशिप विद फूड. डू यू नो व्हाट आई मीन? इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड और इसको रिवर्स करना है हमें. I always tell this to my clients के what if there was Diwali every day? तुम मनाओगे नहीं, तुम बोर हो जाओगे. दिवाली we get excited for Diwali because it comes once in a year, है ना? तो तुम्हारा पिज्जा, बर्गर, गोलगप्पे, पानी पूरी, उसको once in a week रखो ना. I'm not saying once in a year. Keep it once in a week so that you look forward to Saturday. I do that. मुझे, यश, you won't believe how big of a pani puri fan I am. Like my bhabhi cooks really good pani puri, and every Sunday, without fail, I will train my legs on Sunday morning and I'll gulp itna zyada pani puri on that evening. So I look forward to that. But अगर अभी हो क्या रहा है कि भावना अगर बाहर गई, भावना के पॉकेट में 50, 100, 200, 500 रुपए पड़े, पानी पूरी की लारी दिखी, कोई रोकने वाला नहीं है. तुम्हें मन किया तुम खाओगे, राइट? There is no restriction to it. जब भी मन किया खा लिया. Keep it as a celebration, keep it as a festival. कि मैं वीकेंड पे आएगा तब मैं पिज्जा खाऊंगी, तब मैं वाइन पीऊंगी, तब everything should be a occasion, not ऐवे ही. फिर वैल्यू नहीं रहेगा उसका. तो that was it guys from my side. कुछ और सवाल हो तो यश के पास मेरा WhatsApp नंबर होगा. You guys can get it from there. Thank you. Please message the sheet that you have said. Actually, I don't have that. Yes. मुझे खाली पिंग कर देना ना WhatsApp पे, so that I'll send. ठीक है? जिस जिसको भी शीट चाहिए वो मुझे पिंग कर देना. और yes, बाकी तो कुछ और काम हो तो you can contact Yash and get my details from him. Definitely. For the yes. It was a wonderful session. Like many of them these were basic simple doubts, like everyone was so confused with throughout the years because of all the myths and all. And it was really good that you cleared all of them. That now mostly it will be helpful for me because my mom has attended now, so she won't mind me having lots of protein now, so she knows what's the reason I take a lot of protein for. Everyone should be taking enough protein. I'm not saying there is no more or less. जो चाहिए उतना. Simple. You figure out what you need. That's it. So that's it. But yes, Rupal ji, I can't hear you. You're on mute. The main thing is now our eating pattern has changed. Like शाम को खाने में क्या बनाना है? शाम को okay. खाने में क्या बनेगा? मतलब वो है नहीं कि रोटी सब्जी खाने को सब तैयार नहीं है शाम को. हाँ. Okay. So because of making something or the others, I think we are losing the nutritional point of view. Yeah, that should be done. Yeah. So according to you, what we should have for dinner?
सी डिनर सबका क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है उस पे होगा, पर आइडियल तुम्हारा लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट तीनों शुड हैव ऑल द 3 थिंग्स. सो ईदर चावल या रोटी, कोई भी एक ग्रीन या सीजनल सब्जी, एंड कुछ एक प्रोटीन का कुछ. इट कुड बी चना सब्जी, इट कुड बी मूंग सब्जी, इट कुड बी पनीर, इट कुड बी टोफू, इट कुड बी सोयाबीन, कुछ भी. और उसमें तुम्हारे पास वेराइटीज है. लाइक यू मेक पनीर में से जो बनाना, पनीर टिक्का, पनीर मसाला, पनीर कोफ्ता, पनीर ये व्हाटएवर यू वांट टू मेक, यू मेक. बोर होने की जरूरत नहीं है उसमें, बट यू हैव टू ऐड दैट इंग्रेडिएंट इन इट. फाइन. हाँ, क्योंकि अब तक ऐसा चलता है कि एक दिन किसी को पाव भाजी खानी है, हाँ, किसी को ये मतलब हाँ, पुलाव कढ़ी खानी है. एक दिन वह ऐसा हमारे ऐसा चलता था कि शाम को एक दिन राइस की आइटम बन गई, एक दिन परोठे की आइटम बन गई. पर नाउ आई सी टू इट दैट उसके अंदर ये सब चीजें भी आनी चाहिए. एंड यू कैन एक्सपेरिमेंट. मैं ऐसा बोलता हूँ, पराठा बनाना है तो थोड़ा पनीर डाल दो, या तो आटे के अंदर सोयाबीन डाल दो. सोयाबीन को ग्राइंड करके तुम आटे के अंदर डाल दो. सो यू आर मेकिंग पराठा विद प्रोटीन. तुम डोसा बना रहे हो तो डोसे में चावल के साथ साथ तुम दालों का क्वांटिटी बढ़ा दो. सो मूंग और चने की दाल जो होती है वो थोड़ा ज्यादा कर दो, चावल थोड़ा कम करो. इफ यू आर पोहा बना रहे हो तो पोहा के साथ में कुछ स्प्राउट्स होना चाहिए. तो यू आर एडिंग समथिंग टू इट. यू जस्ट बी क्रिएटिव. तुम्हारे पास प्रोटीन के पूरे इंग्रेडिएंट्स है ना, देखो कि जो तुम सब्जी बना रहे हो उसमें किसका यूज कर सकते हो. ओके फाइन. आपके लिस्ट से अब थोड़ा इजी हो जाएगा. यस आई विल सेंड यू द लिस्ट अभी. यस आई विल सेंड इट टू यू. ठीक है, एंड यू कैन फॉरवर्ड इट टू पीपल. ऑसम. चलो तो फिर थैंक यू वेरी मच. प्लेजर आंटी, सो मच. मिलते हैं फिर. कुछ और हो तो फिर बिंदास, बट लवली सीइंग यू ऑल. टेक केयर. Thank you. Thank you, doctor. Thank you. Bye Shilpa. Bye Namita. Bye Bhavna. Bye Rupal ji. Bye Trisha. Yash bro, take care. मिलते हैं. Bye. Bye.